यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद बात रायसीना डायलॉग की, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन यानी आज थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस इस विषय के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा और कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है और जोखिम उठाता है वे अव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाएंगे। We do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अव्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन साथ ही इस रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर भी पश्चिमी देशों को घेरा। उन्होंने कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वैश्विक नियमों का आधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर पर आक्रमण को विवाद में बदल दिया। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So, I think we need, if to have an order, there must be fairness. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन अपने मुख्य भाषण में तुलसी गाबार्ड ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती रही है और मजबूत होती रहेगी। It's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. The partnership between our two countries has been strong for decades, and under the leadership of two great leaders and true great friends, President Trump and Prime Minister Modi, and rooted in our shared values of peace and freedom, security and prosperity, I'm confident that this partnership and friendship between our two nations and our leaders will continue to grow and strengthen.
और अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे में हमारा जोर शांति पर समय अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। We live in a time where war and conflict is being waged on many fronts around the world. So your focus again on peace, people, and planet is timely. It is times like this that call on leaders to stand up for these interests that affect us all and will affect generations who will follow. In President Trump's recent campaign for the presidency, he made it a pillar of his campaign to share his commitment to peace and to bring his leadership towards bringing about an end to the Russia-Ukraine war. Now, these goals cannot be achieved by any one person or one nation alone. Our ability to make progress toward a peaceful, secure, free, and prosperous society must be done together, and it begins with us. और साथ ही तुलसी गाबार्ड ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र है। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. And we must tackle these challenges together. Our ability to do so as nations, as leaders, as people, is critical towards achieving our collective goals. तो रायसीना डायलॉग में विश्व के कई नेता रख रहे हैं अपने अपने विचार। 2016 से शुरू हुआ रायसीना डायलॉग और अब इसका 10वां संस्करण है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर हम इस 10वें संस्करण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की, चाहे हम कूटनीति की बात करें या विदेश नीति की बात करें, इस लिहाज से ये रायसीना डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने आज जो बातें सामने रखी, कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट लेकिन कड़े शब्दों में सच्चाई दिखा दी है उन्होंने विश्व को कि अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से दोहरा रुख अपनाते रहे हैं ये पश्चिमी देश। निश्चित तौर पे देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने जो शुरुआत में कहा और जो अंत में कहा, दो बार उनके कमेंट हुए, उन दोनों का एक सार तत्व यही था कि दुनिया एक तरीके से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में विभाजित है। जो वेस्ट है वेस्ट ये समझता रहा है कि वो जो करते हैं सबसे सही है, और जो ग्लोबल साउथ के लोग करते हैं वो कहते हैं कि वो गलत है, उसका इरादा गलत रहा है। तो एक तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक खास बात कही कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो कॉलोनियल ऑपरेशन का शिकार रहा, वो भारत रहा, लंबे समय तक भारत रहा। और उसके बाद जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद उस समय पश्चिमी देश और उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया कि उस समय खड़े हो गए। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कश्मीर के मामले में कि कश्मीर के मामले में जब भारत सदिच्छा से गया यूएन में, तो यूएन में विक्टिम जो भारत था और जो इन्वेडर जो पाकिस्तान था, उन दोनों के एक ही यार्डस्टिक पे तौला गया और इसमें अमेरिका और वेस्ट दोनों शामिल थे। तो यह उदाहरण देके उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन था या पुराना इंटरनेशनल ऑर्डर था, वह इंटरनेशनल ऑर्डर एक पुरानी ऐसी रियलिटी पे आधारित था जिसकी छाप वर्ल्ड वार 2 के जो बना था ग्रुपिंग उसमें था, जिसमें कि ग्लोबल साउथ की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। वर्ल्ड वार 2 में भी विकसित देश ही आपस में लड़ रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है आज की कि वो कन्वर्सेशन का जो तरीका है, वो कन्वर्सेशन का तरीका बदलना चाहिए, जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्डर को आज के रियलिटी के मुताबिक बननी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भारत इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं चाहता है, भारत इंटरनेशनल ऑर्डर चाहता है और जो ज़मीनी हकीकत है दुनिया की, उस हकीकत के आधार पर चाहता है। तो एक तरीके से उन्होंने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, क्योंकि आज के वो पहले प्रमुख सेशन में उपस्थित थे। जी अखिलेश, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब तुलसी गाबार्ड ने इन बातों को सामने रखा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता, जाहिर है कि भारत की महत्ता उसमें और बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो बात कही कि अमेरिका फर्स्ट की परिभाषा जो विश्व समझ रहा है, ट्रंप वो नहीं, उससे आगे विस्तार देते हुए उन्होंने इन बातों को सामने रखा है। क्या अपने रुख को और विस्तार देता नजर आ रहा है अमेरिका इस मंच पर?
निश्चित तौर पे देखिए तुलसी गबार्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के इस बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का कोई इतने बड़े स्तर का अधिकारी भारत आया है और उन्होंने आज तीसरा दिन है उनका। इस दिन में कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन आज जो उन्होंने अपना भाषण दिया उन्होंने एक तरीके से कहे कि उन्होंने दिल खोल के भाषण दिया, जैसे कि श्री कृष्णा भी 2 बार बोला। उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट में हम अन्य देशों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि जो है हम पीस मेकर के रूप में उनकी लेगेसी को स्थापित करना चाहते हैं। और तीसरी बात जो तुलसी गबार्ड ने कही वो कही कि जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उसकी सुरक्षा और उसकी प्रॉस्पेरिटी सबके लिए, सबकी सुरक्षा और सबकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस का जो इनिशिएटिव लिए है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी देशों को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपना अपना योगदान करना चाहिए। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि सकारात्मक संदेश था आज, जबकि रूस यूक्रेन पे अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ शांति स्थापित हो और वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। तो तुलसी गबार्ड का संदेश था इसी रूप में था, एक शांति दूत के रूप में। जी बिल्कुल अखिलेश, और जब आज यूक्रेन के विदेश मंत्री भी राइसिना डायलॉग में अपनी बात सामने रखेंगे, तमाम महत्वपूर्ण वक्तव्य जिन पर रहेगी करीबी नजर, आप भी ध्यान रखिए इन खबरों पर, आपसे वापस से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर नागपुर से। महाराष्ट्र के नागपुर में